Hi guys, good evening. Good evening, sir. Okay, start करते हैं. So लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने बेसिकली बोल्ट्जमैन फैक्टर पे वो किया था, डिस्कशन किया था, टेम्परेचर पे किया था, एंड देन वी केम टू द बोल्ट्जमैन फैक्टर. वी बेसिकली सेड दैट द probability of your system, particle, whatever, I mean whatever you are considering at that point, to have some particular energy E is basically proportional to the corresponding Boltzmann factor, which is e to the power minus that energy over kb, Boltzmann constant, and the thermodynamic temperature, right? So this is that proportionality. And we can make it a probability also. Obviously we can normalize this particular function, and which means that इसको हम इंटीग्रेट करके और 1 से इक्वेट करके, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है, तो अक्रॉस ऑल पॉसिबल एनर्जीज इसका इंटीग्रल जो है वो 1 आना चाहिए. कुछ तो एनर्जी होगा ही, वन ऑफ द पॉसिबल अवेलेबल एनर्जीज में से जो भी उसका एनर्जी होगा, तो उन सब प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा. तो इफ वी इंटीग्रेट दिस ओवर ऑल पॉसिबल एनर्जीज एंड इक्वेट इट टू 1, देन वी कैन फिगर आउट, मतलब बेसिकली वी विल फर्स्ट पुट सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हियर, मे बी k, to make it an equation, and then we integrate the whole thing to get the value of k. Integrate the whole thing and equate to 1, therefore solve for k, put the k back, and then you have an equation. ठीक है? Mostly जो है क्या होता है कि in most scenarios you don't really need to know, except maybe if you, I mean, depends on what we're trying to do. If you're just interested in the, let's say the relative fraction or something, then this is enough. This will do the job. But in some other situations, like जैसे Maxwell-Boltzmann distribution में अगर हमें कुछ करना है, तो then we need the exact constant factor in front to calculate the exact values of things like what is the most probable speed or what is the most probable kinetic energy and something like that. ठीक है? So anyway, I'll just leave it at this point here. And हम क्या करेंगे कि कुछ problems करते हैं इस पे, few problems based on the Boltzmann factor. But let me also say that वो जो मैं प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन का, which is to say कि सम करके 1 कर दो, कंटिन्यूअस केस में वो इंटीग्रल है, और डिस्क्रीट केस में it is a sum, right? So if you kind of know, for example, if you say I want to know the exact probability of having the particular energy EI, which is amongst the possibilities of having some energies, then you could say it is basically the Boltzmann constant factor relative to that particular energy, and then you divide it by the sum of all the possible Boltzmann factors, right? So minus EJ KBT, just the sum of all the possibilities. J goes from wherever to wherever, right? 1 to n. Okay. So this is the discrete version of normalization. I mean, if you have discrete energies, then you use this. If you have continuous, ये मैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है? तुमको कोई करना नहीं पड़ेगा कहीं पर. I mean, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बेसिक सा, तो उसमें तुम देख सकते हो like how you do it, but otherwise it's not like you are going to require the integral version of the normalization of this at any point. It's very unlikely. So acha, let me also say one other thing which has nothing particularly to do with the Boltzmann factor, just the idea of things like what is the mean value of something, right? So for example, if you have I don't know if I said this the last time, if you have a random variable x, right? X is a random discrete variable, meaning to say it can take any value.
but those are discrete values. And if I have, let's say, the probability distribution of this random variable, I know this, जैसे energy के case में example हो गया. But this could mean anything, right? Over here, it is not particularly about energy or about physics or anything. This could be the probability. This could be the random variable that describes the ages of people. So the random variable x is the age, and the px is the distribution of, the probability of having a certain age, something like that. So then if you have this distribution, probability distribution, or the function of probability, then if somebody says, what is the average value of this random variable? Let's say, agar age hai, to what is the average age of this particular set or collection over which this px is defined? Then how would you find it? Basically, the idea is that you would sum all of them up, right? x1 plus x2 plus so on. Let's say there are n of these things. And then you're going to divide over n, right? But obviously, the thing is that values might be repeating. Multiple people might have the same age. So it could possibly be that the x2 value and the x3 value and the x4 value are the same number. Let's say this is a bunch of ages in a classroom. So maybe there are 3 people who have age 16 and 1 person who has age 15 and 5 people who have age 17, something like that. So basically, अगर मैं age का example ले लूँ, just an example. So you are, let's say, looking to find the average age, right? So you would say, okay, there is one person of 15 years old, and then there is somebody with 16, and then somebody else is 16, and then somebody else is 16, and then so on. And then you divide by the number of people. Let's say there are 30 people in the whole classroom. So this would basically become something like 1 over 30 times 15 plus 3 over 30 times 16. Because naturally you would not, even in any case, you would not write 16 3 times, right? You would have said there are 3 people, they are age 16, so that's just 48, and so on. But if you look at this, then 1 by 30 is basically the probability of having the age 15 in this classroom, right? If there is just one person with the age 15, then 1 over 30 is the probability that somebody has the age 15, and you're multiplying it to the age itself. Similarly, 3 over 30 is the probability that there is somebody, if you pick somebody at random from this classroom, they will have the age 16. The probability for that is 3 over 30. And then you're multiplying it to the age itself, and then you're summing it up. So basically, in general, I could say that the average value of the random variable x is basically the value of x multiplied to the distribution, probability distribution of x, or the probability of having the value of x, summed over all possible values of x. This makes sense? Yes, sir. Right? So this is your standard way of finding the average value of some random variable. Agar ye continuous random variable hai, instead of being a discrete random variable, it takes values from the real set, then this summation would turn into an integral. That would be x, and then px dx integral. But abhi discrete ka example mein le raha hu, so it's just the value x multiplied to the probability of having the value of x summed over all possible values of x. ठीक है, फाइन. तो एक काम करते हैं, तुम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करो कि let's say I have a system in which there are सर हाँ सर इसमें आरएमएस वगैरह कैसे निकालें? आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं. देखो, आरएमएस वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए तुम ये करोगे, ये तो मीन वैल्यू हो गया ऑफ एक्स. अब आरएमएस वैल्यू जो होता है वो बेसिकली होता क्या है कि इट इज द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर. तो मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर तुम बोलोगे कि मैं एक्स आरएमएस फाइंड कर रहा हूँ, तो तुम क्या कर रहे होगे कि पहले तो सारे एक्सेस को स्क्वायर कर रहे होगे. ये तो हो गया स्क्वायर. फिर उन सारे स्क्वायर्स को सम करके मीन निकाल रहे होगे.
राइट, तो ये हो गया मीन ऑफ स्क्वायर्स, और फिर इस पूरे का रूट ले रहे होगे, सो ये हो गया रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। सर इसको px के टर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेट्स से कि अगेन मान लो तुम आरएमएस एज निकाल रहे हो क्लासरूम का, है ना, तो तुम क्या कर रहे हो कि तुम 15 का स्क्वायर कर रहे हो, फिर तुम 16 का स्क्वायर कर रहे हो, फिर तुम 16 का स्क्वायर कर रहे हो एंड सो ऑन, और बाय 30 कर रहे हो और रूट ले रहे हो। तो अगेन इट इज 1/30 टाइम्स 15 का स्क्वायर प्लस 3/30 टाइम्स 16 का स्क्वायर। समझ गए हो गया, अब आगे क्या होगा? सर तो x स्क्वायर px होगा ना? करेक्ट, तो एक्स स्क्वायर का मीन का रूट विच इज व्हाट आरएमएस इज बेसिकली मीन्स कि तुम एक्स स्क्वायर को उसके डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द वैल्यू एक्स, और फिर रूट ले रहे होगे, ये हो गया आरएमएस ऑफ एक्स। मेक सेंस? यस सर। सर इसका इनफैक्ट समेशन इसका जनरलाइजेशन भी है। जनरलाइजेशन ये है कि हम कोई भी फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स इवेलुएट कर सकते हैं। देखो इफ यू नाउ जनरलाइज ओवर दिस प्रॉपर्टी एक्स, तो ये x की पावर 1 एक फंक्शन है जिसको तुमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया है। यहाँ पे तुमने एक्स स्क्वायर फंक्शन बना के, एक्स रैंडम वेरिएबल का फंक्शन एक्स स्क्वायर बना के उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया है। रूट तो चलो एक एक्सट्रेनियस फीचर है कि रूट लेना पड़ता है, ताकि आई मीन फ्रॉम अ फिजिकल स्टैंड पॉइंट टेकिंग द रूट बेसिकली ब्रिंग्स इट बैक टू द डिमेंशन ऑफ वॉट एवर एक्स यूज टू बी। अगर वो एज था तो एजेस का स्क्वायर करके डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल प्रॉपर्टी भी एज स्क्वायर में आएगी, लेकिन अब डिमेंशनली एज करने के लिए रूट कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। So the point is that it could very well be neither x nor x square. It could be, you could say, what if I want to find the average value of this function defined over the random variable x, where x is also not a equiprobable random variable. It is governed by the probability distribution x px. समझ गए क्या कह रहा हूँ? यस सर। बेसिकली अगर कोई, जब हम कोई नॉर्मल एवरेज निकाल रहे होते हैं किसी फंक्शन का, तो हम ये चीज कर रहे होते हैं, ये वाला चीज। करेक्ट, हम कोई वैल्यू का अगर हम एवरेज, एज का एवरेज निकाल रहे हैं, किसी भी चीज का एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन अब अगर तुम किसी उस रैंडम वेरिएबल पे डिफाइंड किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो, एंड दिस फंक्शन कुड बी एनी फंक्शन, बट द थिंग इज दैट द रैंडम वेरिएबल x itself follows a probability distribution. It is not that x can take any value with equal probability. If it can take any value with equal probability, then px is simply 1, and the average of this fx is simply what is your conventional average of the function of x, which is when you draw a graph on x, let's say, and you say कि इसका एवरेज वैल्यू बता दो। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे होते हो कि फंक्शन कुछ है और तुम उसको एक यूनिफॉर्म वैल्यू से अप्रोक्सीमेट, आई मीन इन द सेंस ऑफ कि अगर एक यूनिफॉर्म वैल्यू होल्ड करता तो क्या करता, लेकिन अगर ये x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अगर करने की प्रोबेबिलिटी भी स्क्यूड है, ये तो ग्राफ तब है जब x का कोई भी वैल्यू होना इक्वली प्रोबेबल है, लेकिन अगर x की कुछ वैल्यू ज्यादा लाइकली है तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे बायस कर देगा फंक्शन को भी। तो फंक्शन भी का भी एवरेज वो नहीं आएगा जो फंक्शन का एवरेज होता अगर x के सारे वैल्यूज जो है इक्वली लाइकली होते। तो उस तरह के फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए हमें fx को px से मल्टीप्लाई करके और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अज्यूमिंग fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, तो ऑब्वियसली px भी एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, तो फिर उनका प्रोडक्ट एक फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रल से fx का एवरेज वैल्यू मिलेगा अंडर द आइडिया दैट द वेरिएबल x इटसेल्फ फॉलो सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये तो उसके जस्ट दो स्पेसिफिक केसेस हैं कि x की पावर 1 और x की पावर 2, दे आर द मोस्ट कॉमन एंड द मोर यूज्ड in a sense of they have far more utility in some physical interpretations like this, the finding the average value of some random variable,
and finding the average value of the square of some random variable usually has a lot of physical significance. Like for example, when you study the Maxwell distribution, x is basically a variable representing speed, and so it's useful to know the average speed. And it is also useful to know the average of the square of speed, because the average of the square of speed basically gives you the average kinetic energy, which is also a physically meaningful quantity. But the average of the cube of the speed, or the average of the sine of the speed, or the average of the log of the speed, I mean, given that there is a Maxwellian distribution on speeds, you would not really want to find what is the sine of speed or what is the logarithm of speed, because it doesn't really occur in any physically meaningful way. But you could potentially find it. The mathematics is there. तो ये चीजों के स्पेसिफिक नाम भी हैं कि भाई जो x की पावर 1 वाला है उसको x का मीन कहते हैं, जो x की पावर 2 वाला है उसको x का रूट मीन स्क्वायर कहते हैं. बट इट्स बेसिकली अ जनरलाइज्ड आइडिया, राइट? ओके सर fx का मीन क्या था, आप लिख दोगे एक बार? fx का मीन जो है वो fx px का इंटीग्रल हो जाएगा. बेसिकली यू रिप्लेस द x विद व्हाटएवर. जैसे यहाँ पे तुम x को, x की जगह तुम fx अगर डाल दोगे कि तुम fx का मीन निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे भी x की जगह fx डाल दो. ठीक है सर. राइट? तो मतलब यहाँ पे fx इक्वल्स x लिया है ना आपने? हाँ, एक तरीके से fx इक्वल्स टू x लिया है. x खुद भी एक fx ही है. इट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल fx. सर लेकिन फिर fx अगर हम लेंगे तो फिर डायमेंशनली चेक भी करना पड़ेगा ना? नहीं, वो एक अलग इशू है. मैं तो मैथमेटिक्स बता रहा हूँ. और डायमेंशनली तो ठीक ही है, क्योंकि देखो तुम इधर भी fx का मीन निकाल रहे हो. fx अगर x का कुछ भी फंक्शन है जिसकी कुछ भी डायमेंशन है, तो इधर भी वही डायमेंशन आएगी, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से. यस सर. राइट? तो डायमेंशन का कोई लोचा नहीं है. मैं बस ये कह रहा हूँ कि the idea that you can put some fx instead of x is there. You can use it if you need it. And in fact, you should also look at x also as an fx. X is also an fx, right? So anyway, you are doing that. सर अभी अगर रूट मीन में वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर कैसे लेंगे? रूट मीन में कंटिन्यूअस नहीं होगा तो कैसे लेंगे? मतलब हमें डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है x की, तो फिर कैसे लेंगे हम उसका रूट मीन्स का? कैसे कंटिन्यूअस है. निकालेंगे? अगर कंटिन्यूअस है तो हाँ सर. हाँ, तो बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे. हम करेंगे आगे जाके इसको, जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे तो एक बार करके मैं बता दूंगा. ठीक है? क्योंकि इस पे हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हम रिविजिट करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट जो तुम काइनेटिक थ्योरी में पढ़ते हो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, और मीन स्पीड क्या होता है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है. सो वी विल गो टू देम, एंड व्हेन वी आर देयर वी विल एक कर लेंगे, एक इंटीग्रल में करके बता दूंगा. तो तुम देख लेना कि कंटिन्यूअस केस में बेसिकली व्हाट दैट वुड मीन. But the idea is there. You can find out basically the mean of any function of x, including the square, right? तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं. पहले तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसी आइडिया पे बेस, जस्ट ऑन द आइडिया ऑफ द बोल्ट्जमैन फैक्टर एंड दिस आइडिया ऑफ हाउ यू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ समथिंग. सो लेट्स से कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल जो है किसी टाइप का क्वांटम सिस्टम है. ठीक है? मतलब उससे मतलब सिंपली इतना सा है, कोई खास ऐसी बहुत भोकाल बात नहीं है. सिंपली उसका मीनिंग है कि मतलब ये पार्टिकल जो है हर कुछ एनर्जी नहीं ले सकता है, तो मतलब डिस्क्रीट एनर्जीज है. इसलिए भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का बहुत रेलेवेंस होता है फिजिक्स में, क्योंकि इवेंचुअली जो है अल्टीमेटली बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं, और फंडामेंटल लेवल पे तो सब कुछ डिस्क्रीट ही है. लाइक एनर्जीज आर डिस्क्रीट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिस्क्रीट, and so on. So therefore even the discrete version of things which basically otherwise लगता है कि ये बच्चों के लिए और अल्टीमेटली तो कंटिन्यूअसली ही करना होगा, रियलिटी में अल्टीमेटली जाके डिस्क्रीट ही हैं चीजें एट द वेरी फंडामेंटल लेवल. तो कंटिन्यूटी तो एक इल्यूजन है एट द मैक्रो स्केल. स्मूथनेस तो जहाँ हम कर पाते हैं वहां कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो ट्रूली डिस्क्रीट होते हैं या उनसे डिस्क्रीट लेवल पे ही डील करना होता है. तो देन यू हैव टू यूज द डिस्क्रीट वर्जन ऑफ थिंग्स एनीवे, राइट? सो मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है. इसमें जो है ये 2 स्टेट सिस्टम है. तुम सोच सकते हो जैसे तुम लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा था, तो उसमें भी तुम एक तरीके से कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एनर्जी के स्टेट्स में हो सकता है, राइट? तो ये उससे उसका भी एकदम सिंपलर वर्जन है, बस इसमें 2 ही स्टेट्स पॉसिबल है. ठीक है? तो एक उसमें px i स्क्वायर था ना किसमें? सर? बोर मॉडल में. बोर मॉडल में
सर पी ऑफ एक्स साई स्क्वायर था ना? बोर मॉडल में हाँ, अगर तुम डिपेंड करता है कि तुम अगर एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो बोर मॉडल में, अगर तुम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो तो बेसिकली जो है वो उसका यही है, ऑब्वियसली द डिस्ट्रीब्यूशन इज द क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैविंग दैट एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मान लो ये जो सिस्टम है इसमें जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी होती है 0, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट बोल देंगे, मतलब इससे नीचे कोई एनर्जी स्टेट पॉसिबल नहीं। और एक इसकी एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी होती है ई, तो बस 2 ही स्टेट्स होती हैं इस सिस्टम में। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा पार्टिकल इस सिस्टम में होगा वो या तो इधर बैठा हो सकता है या इधर बैठा हो सकता है, बस, और कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है, राइट। एंड ऑब्वियसली व्हेन वी से कि पार्टिकल है और वो एक है, तो नेचुरली ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन कोई एक पार्टिकल पे तो वैलिड होती नहीं। पिछली बार भी हमने डिस्कशन किया था कि हमारा एक सिस्टम है और एक even when you talk, I mean basically when you talk of probability, you have two approaches of interpreting the meaning of probability. Either you interpret the probability as that you have many particles, ठीक है, दो अलग अलग सॉर्ट ऑफ उसके क्या बोलेंगे फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के। एक इंटरप्रिटेशन ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनमें से कुछ करने की, कुछ होने की, कोई इवेंट होने की, लेट्स से मैं प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई कितने रेड है, मैंने रैंडमली जो है पार्टिकल को, या पार्टिकल के मान लो लेफ्ट जाने की या राइट जाने की, कुछ भी एक चीज करने की प्रोबेबिलिटी जो है मैं उसको बताना चाहता हूँ या डिस्कस या फिगर आउट करना चाहता हूँ। तो देयर आर टू in a way mutually exclusive interpretations of what probability means. One is that you are imagining a large or rather basically in principle infinite set of particles in which you find how many are showing the property that you are interested in, and so you count that number and you divide by the total number of particles, and that gives you the probability of having that property. That's one approach to interpreting probability. The other approach to interpreting probability is that you have one particle only. You don't have like an infinity of particles, but you do that measurement on that same particle multiple times, potentially infinite times. And then you count how many times out of those iterations you got the desirable property or whatever you wanted. And then you divide that number by the बेसिकली कॉइन टॉस का एग्जांपल ले सकते हो। अगर ये देखना है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो एक तरीका है कि 10 कॉइन उछालो और देखो कितनों का हेड आया, या एक कॉइन को 10 बार उछालो और देखो कितनी बार हेड आया। अब ये एक अलग डिबेट है और इसमें जाने का कोई खास मतलब नहीं है, ये एक पूरा बैकग्राउंड फाउंडेशन है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, कि कौन सा अप्रोच का मीनिंग क्या है लिटरली, लाइक which is more justified or less justified, or what they mean, or how they are similar or how they are different. बट यहाँ पे जो है मैं कह रहा हूँ कि हमारा 2 स्टेट सिस्टम है, इसकी एक ग्राउंड स्टेट है और एक हाई एनर्जी स्टेट है। इधर यू कैन इमेजिन एक पार्टिकल है जिसको मल्टीपल आइटरेशंस के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं कि कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी वहां है, कभी यहाँ है। या तुम इमेजिन कर लो कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ इधर है कुछ उधर है। ईदर वे यू वांट टू इमेजिन इट, इट्स टोटली फाइन। फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, या तो अ पार्टिकल या द पार्टिकल, जैसे भी तुम इंटरप्रेट कर रहे हो। अगर तुम एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कर रहे हो तो बोलेंगे भाई फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, और अगर तुम इसको मल्टीपल राउंड आइटरेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल गिवन दिस सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम लोग? यस सर। टेम्परेचर टी ले लो, सिंबल टी तुम अपने आंसर में लिख सकते हो। assume that the system or including the particle, or the particle basically is the temperature of the particle or the collection of particles is T. मैं लिख देता हूँ। सर एनर्जी स्टेट ई पे रहने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना? नहीं नहीं, एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है सर। एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है। कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं, तुम्हें एवरेज एनर्जी निकालनी। जैसे कुछ लोग 15 साल के हैं, कुछ लोग 16 साल के हैं, तुम्हें एवरेज एज निकालनी है, वैसे
सर आंसर में के भी आएगा ना? आंसर ई में ही आएगा, ई के टर्म्स में आएगा आंसर। सर के। क्या कह रहे हो? के बी बोल्ट्जमैन फैक्टर? यस सर। नहीं, बोल्ट्जमैन फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है। सिद्धांत आई थिंक करेक्ट। हाँ, आंसर में बोल्ट्जमैन फैक्टर आएगा। मैं बेसिकली कह रहा था कि मतलब टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तब, अब जनरली तुम बता रहे हो ना अभी, तो जनरल फॉर्मूला फॉर एवरेज एनर्जी तो उसमें तो आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, बोल्ट्जमैन फैक्टर भी आएगा। सुमित तुम क्या पूछ रहे हो? इट विल ऑलवेज बी कन्वर्जिंग मींस अ फाइनाइट नंबर ऑलवेज, किस चीज के बारे में? आरएमएस मीनिंग? अच्छा, अच्छा अगर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसको सम कर रहे हैं, तुम कह रहे हो क्या वो सीरीज का सम फाइनाइट आएगा, ये कह रहे हो? हाँ आएगा। आदित्य डिनोमिनेटर तो करेक्ट है, न्यूमरेटर में वो चीज नहीं होएगा, ई तो रहेगा लेकिन दूसरा पार्ट नहीं रहेगा आई थिंक। ओके सर।
योग तुम्हारा भी न्यूमरेटर में वो ई का पावर वाला फैक्टर नहीं आएगा, डिनोमिनेटर करेक्ट है। और किसी का आया आंसर? सर हाँ, सर पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? ये जो लिखा है यहाँ पर इसी को पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, इन वेरी सिंपल टर्म्स, नॉट एग्जैक्टली बट। ओके सर। सर इस साल IOQP 2 लेवल्स में होगा ना? हाँ, जैसे पहले हुआ करता था। सर सेम दिन पे 2 पेपर नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, अभी इस बार वापस पहले की तरह होगा। NSCP होगा पहले, जो IAPT कराता है। वो आई थिंक उसका आ गया है, वो तुम लोगों ने देखा होगा। सर क्या? उसका सर्कुलर आ फॉर्म गया, ओपन हुआ। डेट एंड ऑल आ गया है उसका।
सर रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है? हाँ हो गया है, अपने सेंटर पे पूछ लेना, वहीं पे उसको वो कर रहे होंगे, रजिस्टर कर रहे होंगे। आई थिंक नवंबर में आया डेट उसका, कब आया? नवंबर में, 27 नवंबर को है, सुबह 8:30 से 10:30। सर एग्जाम का नाम क्या है? NSEP, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। तो इसके लिए तुम रजिस्टर कर दो, तुम सेंटर पे भी रजिस्टर कर सकते हो, आई थिंक कुछ लास्ट डेट रहेगा, अगस्त का एंड रहेगा, तो कर दो जाके एज सुन एज पॉसिबल। सर एक छोटा डाउट था। बोलो। सर थोड़ा ऑफ टॉपिक है। हम्म सर अगर लाइट को हम स्टडी कर रहे हैं हम्म तो टू फाइंड आउट के लाइट का अगर पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर, हम्म हम सिर्फ ये स्टडी कर सकते हैं कि हमारी आईज कौन से मैकेनिज्म से उसको परसीव करता है, और फिर उससे वो कंक्लूड नहीं कर सकते कि वेव है या पार्टिकल है? नहीं, क्यों सर? क्योंकि कैसे हो पाएगा, बेसिकली स्केल का ही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है जो आ, सर लेकिन आपने बोला था कुछ तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वाले लिक्विड्स होते हैं आई में। हम्म सर उससे हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि उसका वेव नेचर है या मतलब पार्टिकल टाइप है जो आई को हिट कर रहा है पार्टिकल? नहीं, सो जनरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए सिर्फ रिजल्ट देख सकते हैं, और वेव और पार्टिकल दोनों का एंड रिजल्ट तो सेम होगा। एक तो ये प्रॉब्लम है कि एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप करोगे, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि विजन जो है वो रिलेटिव टू दी, देखो बेसिकली मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये एक सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ थंब होता है ये वेव पार्टिकल के डिस्कशन में, कि लाइट जो है वो, मतलब पार्टिकल है या वेव है, वो तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट के सेटअप पे डिपेंड करेगा कि तुम क्या किस तरीके से उसको मेजर करते हो। तो अगर तुम इस तरीके से सेटअप करोगे कि तुम उसको, उसका एमिशन या उसका रिसेप्शन ट्रैक कर पा रहे हो वाया द एक्सपेरिमेंट, तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता हुआ लगेगा। और अगर तुम उसका प्रोपोगेशन को किसी तरीके से देखना चाह रहे हो, जैसे मतलब सुपरपोजिशन उसका एक तरीका है देखने का, तो तुम्हें वेव जैसा लगेगा। तो इन जनरल क्या होता है कि लाइट के साथ, कि लाइट जो है, नॉट ऑलवेज ट्रू बट रफली स्पीकिंग, द एमिशन ऑफ लाइट, माने कि फ्रॉम वेयर इट इज एमिटेड और वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, एंड द डिटेक्शन ऑफ लाइट is more or less a particle like story, and the general propagation of light through matter or through empty space is more correctly described or more conveniently described via the mathematics of waves. So the, and but also the issue is that in one sense you could also say that कि fundamentally particle है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब लार्ज इनफ नंबर में पार्टिकल्स होते हैं तो वो मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं जो वेव का मैथमेटिक्स होता है। तो वेव, लाइट को वेव की तरह डिटेक्ट करना जो है, वो एसेंशियली इज बेसिकली द आउटकम ऑफ doing measurements at such a large scale that there are so many particles of light that the discreteness is basically smoothed out and you end up seeing wave like features. तो जब भी sufficiently large amount में लाइट रहेगी तो तुम वेव जैसा ही परसीव या डिटेक्ट करने वाले हो उसको। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि विजन जो है, गिवन दैट कि एक रफ और मैक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, it will just not work in the absence of sufficient amounts of light. There is nothing to detect, or the detection mechanisms will not even fire unless there is enough light, and by which point you are way above the discreteness of light. You are in the territory where there is just so much light that there is no hope of detecting individual photons. तो ये स्केल का तो प्रॉब्लम है ही सबसे बड़ा, कि
दूसरा प्रॉब्लम ऑब्वियसली सबसे बड़ा ये है इसमें, दूसरा इशू कि विजन खुद वेल अंडरस्टूड, आई मीन बायोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट as well understood as we would like to. So to use biology to set up an experiment to verify the nature of something else is not going to work, because you don't know, because you don't understand the measurement device itself properly, right? तो वो भी इशू है कि पार्शली तो हम विजन को लाइट के ही प्रॉपर्टीज के टर्म्स में समझते हैं, लाइक लाइट, हैविंग अंडरस्टूड लाइट फ्रॉम अ मोर fundamental point of view helped us understand vision to some extent crudely. तो अब उसको टर्न अराउंड कैसे कर दें उसी पर, राइट? तो ये भी एक इशू है। ओके सर, ठीक है, अद्वय तुम्हारा भी वही आंसर में दिक्कत है जो युग का है और आदित्य का है। फिलहाल सो फार केवल सिद्धांत का ही करेक्ट आंसर है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलो। बेसिकली यस हम सर, वो ई का टर्म आ ई का टर्म है ना, हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, एवरेज एनर्जी। तो ये लॉजिक लगाएंगे, एवरेज ऑफ एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ठीक है, मेरे को एवरेज ऑफ एनर्जी फाइंड करना है, तो इसका मतलब मेरे को सम करना पड़ेगा over all possible energies times the probability of having that energy, let's say I, तो I over all possibilities। अब हमारे सिंपल सिस्टम में एक्चुअली ऑल पॉसिबिलिटीज केवल 2 ही है, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिख लूं तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि 0 एनर्जी हो सकती है और 0 एनर्जी होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, और ई एनर्जी हो सकती है और ई एनर्जी होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, और ये चीज से मेरे को एवरेज एनर्जी मिलेगा। फाइन, तो पहला टर्म तो 0 ही हो गया, दूसरा टर्म ई टाइम्स पीई है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान रखना, ये ई सिंबल जो है एक्चुअली जनरल एनर्जी का सिंबल नहीं है, ये वो पर्टिकुलर एनर्जी ई है। मेरा थोड़ा अनफॉर्चुनेट चॉइस ऑफ सिंबल्स हो गया कि ई जो है is the symbol for energy also as a variable, and E is also the amount. Let me actually replace this with E. नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल भी E है। Let me say कुछ भी ले लेते हैं, एक्स ले लो। X ले लेते हैं, ठीक है? X is the larger amount of energy and 0 is the smaller amount of energy, बराबर? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एवरेज एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो बेसिकली X एनर्जी और X एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन है इधर। फाइन, तो एक्स एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी एब्सोल्युटली कैसे मिलेगी, उसके लिए तुम ये लॉजिक यूज करोगे, ये वाला, करेक्ट? ये कैसे यूज करेंगे, ये ऐसे यूज करेंगे कि पी एक्स चाहिए मेरे को, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा द बोल्ट्जमैन फैक्टर रिलेटिव टू एक्स डिवाइडेड बाय ऑल अदर ऑल ऑफ द बोल्ट्जमैन फैक्टर्स। तो बेसिकली एक्स तो है ही, प्लस 0 एनर्जी का भी बोल्ट्जमैन फैक्टर आएगा जो बेसिकली 1 है, मतलब राइट, ये पी एक्स हो गया। फाइन, यस सर। तो देयरफॉर मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, आई थिंक तुम लोग ऊपर वाला एक्स लिख के डायरेक्टली मेरे को बता रहे होगे, है ना? मैं ही उसको गलत इंटरप्रेट कर रहा था कि वो ऊपर एक्स नहीं होना चाहिए, अनलेस तुम लोगों ने साइन में कुछ गड़बड़ कर दिया। तो देयरफॉर मेरा आंसर आ चुका है फाइनली टोटल एनर्जी का, आई मीन एवरेज एनर्जी का। देयरफॉर एवरेज एनर्जी इज x इंटू पी एक्स। तो x इंटू पी एक्स ये पूरा है, ई की पावर वाले को नीचे ले लेते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में, इसको तो कैंसिल कर देगा 1, और उधर जाके जो है वो प्लस हो जाएगा e टू द पावर प्लस एक्स होगा ना, एक्स बाई के वी। सर आपको यही भेजा था आंसर। हाँ, तो मैंने ही गलत पढ़ लिया ना, वो मुझे लगा कि तुमने प्लस कर दिया लेकिन ऊपर भी रह गया कुछ। ठीक है, करेक्ट है, ये एवरेज एनर्जी हो गया, जनरल एवरेज एनर्जी हो गया, राइट?
तो इसका एक इंटरेस्टिंग आउटकम तुम देख सकते हो, और इससे तुम्हें बोल्ट्जमैन फैक्टर का एक जनरल इंट्यूटिव फीलिंग भी आएगा कि अगर तुम इसको एक्सप्लोर करो दो एक्सट्रीम सिनेरियोज में। एक एक्सट्रीम सिनेरियो में तुम कंसिडर करो कि और ये काफी कॉमन अप्रोच होती है बोल्ट्जमैन फैक्टर का जब डिस्कशन हो रहा होता है कि one second, that the value of the energy x जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू एनर्जी, वो केबीटी के रिलेटिव बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर से केबीटी कंट्रोल होगा। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मान लो तुम हाई टेम्परेचर डोमेन में चले जाओ, ये सिस्टम जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे है, तो बेसिकली उसका मीनिंग ये है रफली स्पीकिंग कि केबीटी विल कंप्लीटली डोमिनेट द वैल्यू एक्स, राइट, विच वुड मीन कि नीचे जो ये एवरेज एनर्जी आ रहा है उसमें जो नीचे फैक्टर लिखा हुआ है उसमें एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक्सपोनेंशियल में जो x बाई केबीटी लिखा है वो प्रैक्टिकली x बाय केबीटी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर होगी, है ना। तो देयरफॉर उस कॉन्टेक्स्ट में तुम देखोगे कि तुम्हारी जो एवरेज एनर्जी आएगी वो x बाय 2 आ जाएगी। समझ गए कैसे? यस सर। राइट। और अगर तुम लो टेम्परेचर्स पे चले जाओ तो उल्टा हो जाएगा, केबीटी विल बी वेरी वेरी स्मॉल compared to x, and if kbt is very very small compared to x, then this factor will go to infinity and it will take the whole thing to 0 with it, तो एवरेज एनर्जी जो है वो 0 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि लो टेम्परेचर पे तो, अब अगर इसको हम वैसे इंटरप्रेट करें कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, एक पार्टिकल नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो लो टेम्परेचर पे यानी टेम्परेचर नियरिंग 0 पे तो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में, तभी एवरेज एनर्जी 0 आ रही है, क्योंकि जिसको तुम देख रहे हो ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है। तो इन वे as you approach lower and lower temperatures, they just don't have the energy required to make that jump. जो jump है that will take them from ground state to the excited state, वो x amount of energy जो चाहिए उनको वो है नहीं उनके पास, क्योंकि KBT जो है वो रफली स्पीकिंग उनका एनर्जी कंटेंट है, तो क्योंकि KBT x से बहुत छोटा है तो they are unable to make that jump, and so all of them are basically being found in the ground state, and that's why the average energy of the collection is 0, सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में बैठे हो। तुम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हो, यानी तुम जब इस तरफ जाते हो तो प्रोबेबिलिटी कोई जंप कर जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी किसी के पास रैंडमली वो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी टू मेक दैट जंप, वो इंक्रीज होता है, तो लोग ऊपर की तरफ माइग्रेट करेंगे। लेकिन ये नहीं हो जाएगा कि तुम बहुत इन्फिनिटी टेम्परेचर पे चले जाओ तो सारे ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि जब तुम ऑलमोस्ट इन्फिनिटी टेम्परेचर पे भी चले गए हो तो एग्जैक्टली आधे लोग नीचे और आधे लोग ऊपर है, तभी एवरेज एनर्जी हाफ आ रही है, ई बाई एक्स बाय 2 आ रही है। आधे लोगों की एनर्जी एक्स है और आधों की 0 है। समझो क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Meaning to say that the Boltzmann factor is a kind of a downward pull, and in the limit of getting the highest possible temperature, it is only able to equally distribute them between the higher and the lower energy state. ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब जनरली स्पीकिंग ये सिचुएशन ऐसी दिखती होगी। अगर तुम इसको और एनर्जी स्टेट्स के अक्रॉस इमेजिन करने की कोशिश करो कि मान लो हमारा सिस्टम 2 स्टेट सिस्टम ना होके मल्टी स्टेट सिस्टम होता और काफी सारे पार्टिकल्स होते, तो बेसिकली क्या होता कि बिल्कुल जब तुम 0 टेम्परेचर पे रखते सिस्टम को तो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट पे होते, तो बेसिकली ये सब लोग यहाँ बैठे होते। एज यू रेज द टेम्परेचर यू वुड फाइंड that it would still always be the case that a larger number would be found in the ground state, but a progressively smaller number would be able to get up. It would always look like this. Increasing the temperature would basically make it more and more like this. तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. But it can't ever make it look like this, right? You can never have more people in the higher energy state than you have in the lower energy state, because the lower energy state is obviously more tempting, and there will always be found more people in the lower energy state than in the higher energy state.
एट बेस्ट तुम ये कर सकते हो कि ये जो पीक बन रहा है इसके तुम वॉल्स वर्टिकल कर दो, वो भी थियोरेटिकल लिमिट है कि तुम ऐसा कर दो, विच इज टू से उतने ही लोग जीरो स्टेट में जितने हायर एनर्जी में, जितने हायर एनर्जी में, जो हमारा ये हो गया मतलब एक्सट्रीमली इन द लिमिट ऑफ इन्फिनिटी टेम्परेचर, then you can have like a equal distribution in all energy levels. But this is obviously some kind, this is not really a physical reality, it's basically just the limit of that idea. In general you will always have this kind of a situation, and the higher you, I mean the more you raise the temperature, the more you collect it from being this to making it narrower and taller. तो ये हो गया एक तरीके से टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन। हम हालांकि लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन, बट ऑब्वियसली तब वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और केवल इन द सेंस ऑफ देयर इज सम डेरिवेटिव ऑफ सम लॉ ऑफ सम माइक्रो स्टेट्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसका और फिजिकल मीनिंग निकलता है कि एक सिस्टम में टेम्परेचर बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो एनर्जी कैसे असाइन हो रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। A system at high temperature is basically able to access the higher energy states, but while it is always true that the lower energy states are always more tempting or more particles are always found at the lower energy states. ठीक है सर सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो पीक सेंटर में ही हो, वो ऐसा थोड़ा टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट भी हो सकता है। नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये कोई फिजिकल जगह नहीं है, एनर्जी के एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ये स्पेस में लोकेशंस नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ यस सर। तो बेसिकली अगर मेरे पास नीचे वाले स्टेट में 10 लोग बैठे हैं और ऊपर वाले में 6 लोग बैठे हैं और ऊपर वाले में 4 लोग बैठे हैं, तो दिस इज नॉट अबाउट वेदर दीज 10 people are located relative to the 6 people like this in space. It is about the fact that there are 10 people at the bottom, then there are 6 people above them, then the 4 people above them. Energy states are not physical places in space, right? हाँ यस सर। It is entirely possible कि ये बंदा जो है एक्चुअल फिजिकल स्पेस में इसके बाजू में बैठा हो, करेक्ट? हाँ यस सर। ठीक है ना सर? हाँ सर, ई एनर्जी ना के कोई और माइक्रो स्टेट क्वांटिटी होगा तो भी ये सेम रिजल्ट वैलिड होगा? हाँ बिल्कुल सर, बट वहां पे टी टेम्परेचर ना के कुछ और होगा ना? ई सर, टी और टेम्परेचर नहीं होगा ना, कुछ और होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक मैथमेटिकल आउटकम है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई और प्रॉपर्टी तुम ऐसी डिफाइन कर सकते हो, आई मीन जनरल आइडिया तो उधर से ही आएगा कि तुम एक सिस्टम को अलाउ कर रहे हो पॉसिबल स्टेट्स में होना, और फिर तुम उनको अलाउ कर रहे हो मैक्सिमल एंट्रोपी या मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी पे जाना। तो अब जनरली स्पीकिंग उधर से जो इंटरप्रिटेशन निकल के आया है उसी को टेम्परेचर कहते हैं इन जनरल। सो टू फाइंड एग्जांपल्स और केसेस वेयर आउटसाइड ऑफ दिस डोमेन where the same reasoning holds but you have a different language altogether for these terms, I mean quantum mechanics में भी होता है the whole discussion that we had in the previous lecture can be basically taken to quantum mechanics also, but these are the only, I mean they roughly mean the same thing in both cases। मतलब एकदम separate interpretation कि ये t कुछ और है, अल्फा कुछ लिखा हुआ है जो कोई और टाइप का चीज है, मैथमेटिक्स तो सेम आ ही जाएगा एज लॉन्ग एज यू सेट इट अप इन द सेम मैनर कि हाँ ठीक है, बेसिकली दे वांट टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड सो ऑन। इफ यू स्टार्ट आउट फ्रॉम दैट आइडिया यू विल एंड अप विद दिस फंक्शन एट द एंड ऑफ इट, राइट? ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। अब ये एग्जांपल उस टाइप का है कि ये एग्जांपल करने के लिए टेक्निकली इसकी जरूरत नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? वी डोंट नीड द Maxwell distribution, sorry, the Boltzmann factor necessarily। तुम इसमें न्यूटोनियन आइडियाज लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हम इसको इससे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कोई भी सिस्टम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनके एनर्जीज अलग अलग हो सकते हैं, तो एक बोल्ट्जमैन फैक्टर रहेगा जो डिस्क्राइब करेगा उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को एनर्जी के सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या होगा कि अगर एनर्जी स्पेस में लोकेशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है, जो बोल्ट्जमैन फैक्टर है, वो तो एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि भाई ये एनर्जी होने की, ये एनर्जी होने की, ये एनर्जी होने की
इन एनर्जी स्टेट्स में होने की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी पार्टिकल्स की, गिवन दिस इज द टेम्परेचर. And basically what we have found so far is that the higher the temperature, the more people you will be able to promote to higher energy levels, the more likely they will be found in the higher energy levels, but always with the idea that you will always have more people in the lower energy states than in the higher energy states. But if the energy states are also correlated with positions in space, for example अगर तुम बात करो gravitational potential energy की, तो having a certain amount of gravitational potential energy mgh is also literally correlated with being at a height h, I mean being there in that place, right? तो उस केस में क्या होगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमको फिर स्पेस में चीजों का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकता है. अभी तक आई होप यू अंडरस्टैंड. हालांकि और ये जो आदित्य क्वेश्चन पूछ रहा था उसी नेचर का क्वेश्चन था कि ये जो लोग हैं ये कहाँ बैठे हैं और क्या ये जरूरी है कि ये इस तरफ हो उस तरफ हो. तो अभी तक तो ये रेलेवेंट नहीं था क्योंकि हम स्पेस में नहीं बात कर रहे थे, कोई ये फिजिकल लोकेशंस नहीं है, केवल एनर्जी, एक तरीके से एनर्जी स्पेस में लोकेशंस की बात हो रही थी. इफ यू इमेजिन अ पैरेलल स्पेस इन विच the dimensions are of energy, then we were talking about where are they located in the energy space. They might be located in totally random places in the actual space, but but this is how they are located in the energy space. But for something like, let's say, gravitational potential energy or maybe some other central force like anything, electricity or gravity, मतलब रेडियल ग्रेविटी, जैसे सन एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, या कोई भी एक गैस का क्लस्टर बन गया यूनिवर्स में. तो अब उसमें क्या है कि भाई तुम अगर अंदर बैठे हो तो तुम्हारी एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी है, तुम जितना सरफेस के क्लोजर बैठे हो उतनी तुम्हारी एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है. और ये बोल्ट्जमैन फैक्टर बेसिकली बताएगा कि उस जगह पे बैठने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये बेसिकली बता रहा है कि उतनी एनर्जी होने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है. लेकिन क्योंकि एनर्जी लोकेशन इन स्पेस से कोरिलेटेड है तो इनडायरेक्टली ये भी बता रहा है कि वहां होने की उस जगह पे स्पेस में. और अगर व्हेन अप्लाई टू द entire collection of particles, this gives you the overall distribution of the particles in space. Like what does the gas cluster look like? Is it more dense in the middle or is it more dense somewhere else, or how does the density vary with a radial distance or something like that. ठीक है, तो उस नेचर का हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. एक करते हैं पहले बेसिक वाला थोड़ा, मतलब आई मीन इन द सेंस ऑफ की नॉट सो बेसिक बट मोर लाइक की विद द सिंप्लीफाइड ग्रेविटी ऑफ mgh, है ना, मतलब यूनिफॉर्म ग्रेविटी, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. तो मान लो कि एक कोई पार्टिकल यहाँ हो सकता है और ये एक फ्लूइड के अंदर है, राइट, और इसमें मैं यूनिफॉर्म ग्रेविटी मान के चल रहा हूँ नीचे की तरफ, और इसको तुम h = 0 ले लो. ये कंटेनर का बेस होगा, ठीक है, या किसी भी चीज का फ्लूइड जहां भी रखा हुआ है, एयर भी हो सकता है, ये द फ्लूइड कुड बी एयर आल्सो, सो दिस कुड बी जस्ट सम पार्टिकल इन एयर, व्हाटएवर, पार्टिकुलेट मैटर या गैस पार्टिकल है. तो इसका कुछ सर्टेन हाइट h है, इसका मास ले लो m, ठीक है, मास मत लो m, एक काम करो इसकी डेंसिटी, इस पार्टिकल की डेंसिटी ले लो रो, सिग्मा ले लो. सर ये पार्टिकल फ्लूइड का ही पार्ट है क्या, मतलब? नहीं, फ्लूइड खुद कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें से एक पार्टिकल की बात हो रही है. ऐसे मतलब मान ये कोई ऐसे दूसरा मटेरियल का नहीं है? हाँ, दूसरा मटेरियल का है. ऐसा मानो कि ये फ्लूइड जो है, लेट्स से पानी है, ठीक है, ये बाजू में पानी है जिसकी डेंसिटी रो है, ये वाटर है, ठीक है, और ये कोई टाइप का कोलॉइड है या कोई टाइप का सेडिमेंट है, कुछ है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है. समझ गया अभी? यस सर. तो अब बेसिकली तुम ये फाइंड कर सकते हो कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस पानी के अंदर कैसा होगा, मतलब इनकी डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ h. देखो कुछ तो चीजें बहुत ऑब्वियस और एक्सपेक्टेड हैं, ये तो होगा ही होगा कि नीचे ज्यादा डेंसिटी होगी ऊपर कम डेंसिटी होगी, राइट. एंड in fact you could also have a distribution for particles of very different densities also, like मतलब रो तो पानी है, पानी का डेंसिटी रो है, लेकिन उसमें जो सेडिमेंट्स मिक्स्ड अप है वो अलग अलग सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 के, तो मल्टीपल सॉर्ट ऑफ इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूशंस वहां पे हो रखे होंगे, राइट. बट द बेसिक आइडिया इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इस पार्टिकल का कुछ पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है. हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि पार्टिकल्स जो हैं जनरली मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देन दे विल आल्सो हैव एन एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी.
ठीक है, तो फिलहाल के लिए यू कैन अज्यूम दैट ईदर दे आर नॉट मूविंग और यू कैन अज्यूम दैट दे आर मूविंग सो स्लोली so that the kinetic energy is basically negligible relative to the potential energy. ठीक है, so if that's the case then you can find this कि अगर मान लो at the bottom near the bottom particle density n naught है, sediment particle density, ये sediment है, तो ये है basically number of sediment particles per unit volume. ठीक है, ये नंबर डेंसिटी है at the bottom, समझ गए? तो तुमको फाइंड करना है number density of sediment particles as a function of h. ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, कर लो फाइन. इसमें ऑब्वियसली ये अज्यूम कर लेंगे हम, टेम्परेचर का तो इशू रहेगा ही, तो अज्यूम कर लो कि टेम्परेचर पूरा ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म है, पार्टिकल का मास भी ले लो एम, एंड यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ये एक अजम्पशन है ऑब्वियसली, इंडिपेंडेंट ऑफ एच. सर मास एम लेना है ना? हाँ, मास एम ले लो.
हाँ आदित्य वो तो रहेगा। युग तुम्हारे आंसर में ये फैक्ट तुमने अकाउंट में नहीं लिया है ना कि डेंसिटी है उसकी भी और उसकी भी, तो तुमने बेसिकली बॉयंट फोर्स सर मतलब इन, कॉन्स्टेंट्स में गड़बड़ हो गया। हाँ क्योंकि तुमने बस डायरेक्टली एमजीएच ले लिया है विच इज टू से कि बस इस पे ग्रेविटी लग रही है विच वुड हैव बीन करेक्ट, बट ऑल्सो क्योंकि बॉयंट फोर्स लग रहा है तो एक तरीके से वीकर ग्रेविटी लग रही है, तो अगर तुम उस जी को बॉयंसी को इंक्लूड करके करेक्ट कर लो एज लाइक एन इफेक्टिव जी तो हो जाएगा करेक्ट। दिस इज लाइक बीइंग इन अ वीकर ग्रेविटी फॉर द सेडिमेंट राइट। तो मतलब mgh और फिर माइनस ऑफ जो फोर्स लग रहा है बॉन्ड फोर्स। हाँ करेक्ट। ठीक है सर, mg माइनस बॉन्ड फोर्स इनटू h या फिर mgh माइनस बॉन्ड फोर्स। एम जी माइनस बॉइंट फोर्स इंटू एच, क्योंकि जैसे एम जी एच के रिलेटिव एक तरीके से एनर्जी है, वैसे बॉइंसी के भी रिलेटिव एक तरीके से एनर्जी है। यस सर। बिकॉज एम जी एच का एनर्जी क्यों है, क्योंकि सब कुछ एच इक्वल टू जीरो पे होना चाहता है, एंड इफ यू पुल इट अवे फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स एम जी। बॉइंसी का गेम उल्टा है, सब कुछ ऊपर जाना चाहता है, सो इफ यू हैव ब्रॉट इट अप टू एच फ्रॉम समवेयर एल्स then you have had to work against buoyancy in getting there, so there is a kind of a, you could say a kind of a gravitational potential energy related to buoyancy also। बेस्ट तो ये है कि तुम mg में से buoyancy माइनस कर दो या g में से buoyancy का एक्सेलरेशन माइनस कर दो और उसको g इफेक्टिव बोल दो, और फिर ऐसे बोलो कि बस हम वीकर ग्रेविटी में। सर मतलब जी इफेक्टिव टाइप्स ना। हाँ हाँ। ठीक है सर। उर्वी तुम्हारा भी करेक्ट है ऑलमोस्ट, लेकिन तुम्हारा भी बस वो पंगा है कि जी ले लिया तुमने और वो नहीं लिया है, buoyancy नहीं लिया है। सर मैंने और एक आंसर भेजा। उसमें भी तो बस तुमने नंबर ही चेंज किया है ना, बट आंसर में ये रो और सिग्मा भी मेरे को लगता है होने चाहिए, क्योंकि बॉयंट फोर्स तो इनसे रिलेटेड होगा। ओके। तो बस वो करेक्ट कर ले, जो मैं इसको बोल रहा था युग को कि जी की जगह जी इफेक्टिव कर लो, जहां जी इफेक्टिव इज बेसिकली ग्रेविटी नीचे माइनस बॉयंसी ऊपर, तो एक तरीके का वीकर ग्रेविटी करके और अपने आंसर में घुसा दो जी की जगह, तो करेक्ट हो जाएगा। सर अभी भेजा वो करेक्ट है क्या?
अभी करेक्ट है। आदित्य ठीक है, करेक्ट है। एन नॉट से और मल्टीप्लाइड होगा बस, क्योंकि वो ही डिमेंशन वाली क्वांटिटी रहेगी। अद्वैत क्यों रिक्रोल कर रहा है तो सबको? सब मजा आता है। ठीक है, हाँ करेक्ट आंसर है तेरा अद्वैत। नॉट ई की पावर माइनस ये और रो सिग्मा। आदित्य करेक्ट है। ठीक है, चलो इसको मैं कर देता हूँ ना। तो
बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है जो जो मतलब इसका फ्लोर है व्हाटएवर है, उधर तो अपना जीरो ऑफ एनर्जी हमने पकड़ लिया। अब हमको अपना पार्टिकल को जो है नीचे की तरफ mg लगता रहता है और ऊपर की तरफ बॉयंसी लगता रहता है। तो बेसिकली जब वो x हाइट पे मतलब h हाइट पे पहुंच जाता है तो एक तरीके से क्योंकि mg के अगेंस्ट जा रहा होता है तो उसमें mgh पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है बिकॉज इट्स वर्किंग अगेंस्ट दैट फोर्स। और बॉयंसी के साथ जा रहा है तो बॉयंसी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती है। ये समझ रहे हो तुम लोग? मतलब आई एम इन्वेंटिंग दिस टर्म बॉयंसी पोटेंशियल एनर्जी, but in a way the buoyancy force is also like a gravitational force, right? So it subtracts from gravity to give you slightly weaker gravity. या तुम अलग अलग दोनों के corresponding potential energy define कर दो। mg नीचे खींच रहा है, हम h से ऊपर जा रहे हैं तो हम mg के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा mgh बढ़ रहा है। तो अगर हम h ऊपर जा रहे हैं, हम buoyancy के साथ ही जा रहे हैं, तो bh अमाउंट ऑफ वर्क buoyancy हम पे कर दे रहा है, मतलब हम उसके अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर कर दे रहा है, तो हमें buoyancy एनर्जी का लॉस हो रहा होगा इतना अमाउंट में। ये समझे तुम लोग? राइट? तो एक तरीके से h हाइट पे तुम्हारी टोटल एनर्जी ये है जो कि h हाइट से कोरिलेटेड है, बराबर? अच्छा, b को तो तुम Yes, लिख ही sir. सकते हो, b को तो तुम लिख ही सकते हो, b बेसिकली रो bg है, रो जो है फ्लूइड का डेंसिटी है और v अपना पार्टिकल का ये है वॉल्यूम। लेकिन पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं पता है तो एक काम करते हैं, पार्टिकल के मास को पार्टिकल की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो पार्टिकल का वॉल्यूम मिल गया। तो देयरफॉर e जो आ गया मेरे पास h, वो आ गया m, g कॉमन ले लिया मैंने, h भी कॉमन ले ही लिया, 1 माइनस रो बाय सिग्मा आ जाएगा अंदर, बराबर? अब लगा दो बोल्ट्जमैन फैक्टर। तुम्हारा E एनर्जी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो e टू द पावर माइनस e h बाई के बीटी है, ठीक है? विच इज द सेम एज तुम्हारा h हाइट पे होने का प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली तुम्हारा h हाइट पे होने का प्रोबेबिलिटी e टू द पावर माइनस mgh बाई के बी टी 1 माइनस रो बाय सिग्मा है, करेक्ट? Yes, sir. और तुम्हारा h हाइट पे होने का प्रोबेबिलिटी बेसिकली h हाइट पे जो नंबर डेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट h हाइट, which is also literally the probability of being at height h. Do you understand how? हाँ. देखो एक और दूसरे तरीके से बोल देता हूँ, ये जो मैंने पीछे लिखा था कि तुम्हारी probability of having some EI energy is that you have this EI energy by KT। मैं B स्किप कर रहा हूँ, वो लिखने की जगह नहीं बचती ना, K से मान लेना बोल्ट्जमैन फैक्टर लिखा हुआ है, नीचे समेशन ऑफ ऑल द EJs। तो तुम्हारी probability of having EI energy divided by the probability of having EJ energy you will find will actually be proportional to the Boltzmann factor corresponding to the difference of those two energies। ये समझे? Yes, sir. करेक्ट? ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि if you have compared to some state if you have some delta amount of energy more, this is some delta amount of energy more compared to that state, then that Boltzmann factor corresponding to that delta is the ratio, is how more likely you are to be in that state relative to how likely you are to be in that state. The relative likelihood of being in that state, like you are 4 times as likely to be in the ith state than in the jth state, right? Something like that. तो ये लॉजिक अगर तुम यहाँ लगा देते हो और ग्राउंड के साथ h इक्वल टू 0 जहाँ पे e का 0 ले रहे हैं हम, है ना, उसके साथ तुम कर दो डिवाइड ऊपर नीचे, करेक्ट?
तो बेसिकली probability of being at height h divided by probability of being at height 0 is exactly equal to the Boltzmann factor. e to the power minus वो जो सब जो लिखा था mgh by kt 1 minus rho by sigma माइनस होना चाहिए दी एनर्जी जो दूसरी स्टेट की है, लेकिन नीचे की तो जीरो ही ले रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? Yes, sir. But the probability of being at height h divided by the probability of being at height 0 is exactly this quantity, है ना? The relative number density. तो तुम्हारे पास आ गया number density as function of h is number density at the ground level बाय द वे। इसी प्रॉब्लम में अगर तुम बॉयंसी हटा दो, मान लो कि बॉयंसी नहीं है, तो सिंपली माइनस mgh बाई kt आ जाएगा। एंड इफ यू रिकॉल, ये प्रॉब्लम तुम लोगों ने हो सकता है किया हो किसी टाइम पे, जहां पे तुम ये निकालते थे बाय न्यूटन्स लॉ। यू वुड गो टू एटमॉस्फेयर का आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैं टी कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो यू वुड से आई विल गो अप टू अ सर्टेन हाइट h एंड देन आई विल कंसीडर अ लेयर dh। तो तुम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इसकी आर्गुमेंट दे रहे हो कि यहाँ पे जो डेंसिटी है पार्टिकल्स का, अगर वो NH है पर यूनिट वॉल्यूम और ग्राउंड पे 0 है, तो बेसिकली जो प्रेशर का वेरिएशन है वो ये होगा कि भाई ऊपर से इसको P प्रेशर लग रहा रहेगा और नीचे से इसको P + dP प्रेशर लग रहा रहेगा, क्योंकि इस लेयर का भी एक्स्ट्रा वेट उठा रहा होगा, वो ऊपर का प्रेशर उठा रहा होगा प्लस एक्स्ट्रा वेट उठा रहा होगा। तो अगर तुम ए एरिया भी ले लो इसका ऐसे करके, वो तो कट ही जाएगा। तो तुम इसकी डायनेमिक्स लिखोगे P + dP टाइम्स A अपवर्ड फोर्स माइनस PA डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू बीच का लेयर का वेट, इसका वेट। अब इसका वेट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ पे नंबर डेंसिटी NH है तो इतने तो पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ADH इनटू ADH कर देंगे तो पार्टिकल्स का टोटल नंबर आ गया इस लेयर में, और इनटू M कर देंगे अगर एक पार्टिकल का मास M है या स्मॉल m है ईच पार्टिकल, तो ये टोटल मास आ गया, और G कर देंगे तो टोटल वेट हो गया। तो ये तो लिटरली F = ma लिखा है इस लेयर के लिए। इधर से तुम्हारा PA घटेगा, A भी घट जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद dP इक्वल्स टू NH DH mg। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब साथ में क्योंकि ऊपर से नीचे तक बोला हुआ है कि भाई तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है, तो अब तुम्हें एक इक्वेशन ऑफ स्टेट चाहिए होगी, यानी कुछ तो तुम्हें इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर में रिलेशनशिप अलग से कहीं से एक्सट्रेनियस लाना पड़ेगा। सर Right. rho = PM/RT। करेक्ट। तो अब तुम लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसका आइडियल गैस इक्वेशन लगा लो, तो तुम बोलोगे P इक्वल्स टू रो RT/m। लेकिन हम नंबर डेंसिटी में लिखना चाहते हैं सब कुछ, तो रो को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रो इज द टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। आई कैन राइट इट एज NH/m, क्योंकि n is the number per unit volume into mass of each particle, so it's mass per unit volume। RT by capital M, capital M is the molar mass of the thing। सर Molar- स्मॉल m भी तो मोलर मास है ना? नहीं, स्मॉल m तो एक पार्टिकल का मास है, यहाँ पे भी तो एक पार्टिकल हाँ सर, वो मोल का है सर। कैपिटल M मोल का मास है। मोल का मास लिख सकते हो तुम एक का मास इंटू एवोगैड्रो, है ना? तो मास मास कट गया, और R डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, क्योंकि R जो है खुद ही बनता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रो के प्रोडक्ट से। तो तुम्हारे पास P आ गया बराबर। अगर अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dP इक्वल्स टू KB T dN, और अब इस dP को dN से रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो dN इक्वल्स टू N DH mg। n नीचे आ जाएगा dN के, इंटीग्रेट करो लॉगरिथमिक बनेगा, वो उधर जाके एक्सपोनेंशियल बनेगा, यही कहानी आ जाएगी। मतलब इसमें अगर ये रो सिग्मा का फैक्टर हटा दिए, एडिशनल है, यहाँ पे तो बॉयंसी वॉयंसी नहीं ले रहे। तो मतलब फ्रॉम अ न्यूटोनियन स्टैंड पॉइंट यू डू इट यूटिलाइजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट,
But basically, the Boltzmann factor accounts for all of those ideas in the same sort of concept, right? तो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, यही आइडिया है रफली स्पीकिंग। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बोल देता हूँ। जब हमारे पास कोई सा भी ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जब हमारे पास बेसिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फैक्टर हो जाता है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये बता सकते हैं कि अब जैसे ये तो जो एग्जांपल अभी मैंने लिया जिसमें ऊपर की तरफ जो है, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, दीज आर इनफैक्ट, ये जो मैंने सेडिमेंटेशन वाला एग्जांपल लिया है ये एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट एंड द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, आई मीन द थियोरेटिकल आउटकम, ये जो आया है यहाँ पर, इसको उसने जिसने किया था उसने इसको लॉग करके प्लॉट किया था। लॉग से क्या हुआ कि एच नीचे आ गया था ये वाला, और लॉग ऑफ एन के अगेंस्ट उसने प्लॉट किया था, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा विद सम स्लोप, और वो स्लोप में बोल्ट्जमैन फैक्टर भी आएगा, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी। And he was able to do this sedimentation experiment with a number of particles of different densities in a colloidal solution, and show that it actually comes out to be a straight line when plotted with the log of number density versus the height above the bottom. And he was able to calculate from that experimental plot, है ना, मतलब जब plot बन गया log of n और h के